हेलो स्टूडेंट्स, यूपीएससी गाइडिंग प्रिंसिपल चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम जनरल ज्योग्राफी की घटना चक्र को स्टडी कर रहे थे और इसमें हमने जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट है उसको कंप्लीट कर लिया है और अब हम पढ़ रहे हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। और वर्ल्ड ज्योग्राफी में भी हम सोलर सिस्टम को पढ़ रहे हैं और सोलर सिस्टम के अंदर आज हम पढ़ेंगे मरकरी प्लैनेट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मरकरी प्लैनेट, ठीक है। The Mercury is the smallest planet of the solar system and is nearest to the Sun. Mercury completes its one revolution in around 88 days. Mercury and Venus are the planets having no satellites. Mercury and Venus are the planets having no satellites. Absence of atmosphere makes it impossible for sustenance of any life on Mercury. Absence of atmosphere makes it impossible for sustenance of any life on Mercury. The diurnal range of temperature of Mercury is around 610 degrees centigrade, which is very high. The diurnal range of temperature of Mercury is around 610 degrees centigrade, which is very high. Mariner 10 was a satellite launched by NASA which traveled very close to Mercury and took photos of the planets. Mariner 10 was a satellite launched by NASA which traveled very close to Mercury and took photos of the planets. From the pictures, it was found that the surface of the planet Mercury has a number of mountains and plains. The difference between the Sun and Mercury is approximately 58 million kilometer or 0.39 astronomical unit. The difference between the Sun and Mercury is approximately 58 million kilometer or 0.39 astronomical unit. इसके बाद नेक्स्ट है all the 8 planets of the solar system revolve around the sun. All the 8 planets of the solar system revolve around the sun. The time taken for one revolution around the sun by every planet is as follows. Mercury 87.96 days, Venus 224.68 days. हम क्या पढ़ रहे हैं? The time taken for one revolution around the sun by every planet is as follows. Mercury सन का एक रिवॉल्यूशन करने में, सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है? मरकरी 87.96 डेज। वीनस 224.68 डेज में सन का एक चक्कर पूरा करता है, सन के अराउंड एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करता है। अर्थ कंप्लीट करती है एक रिवॉल्यूशन सन के अराउंड 356.26 डेज, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है मार्स 686.98 डेज, जुपिटर 11.862 ईयर्स, सैटर्न 29.456 ईयर्स, यूरेनस 84.07 ईयर्स, नेपच्यून 164.81 ईयर्स, ठीक है। इतना टाइम लगाते हैं ये जो ईच प्लैनेट है वन रिवॉल्यूशन अराउंड द सन कंप्लीट करने में, ठीक है। तो नेपच्यून सबसे ज़्यादा टाइम लगाता है 164.81 ईयर्स। एल्बिडो क्या होता है? एल्बिडो भी एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। एल्बिडो इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ सरफेसेस टू रिफ्लेक्ट द सनलाइट हीट फ्रॉम द सन, ठीक है। एल्बिडो इज़ एन एक्सप्रेशन ऑफ द एबिलिटी ऑफ सरफेसेस टू रिफ्लेक्ट सनलाइट हीट फ्रॉम द सन। Light colored surfaces return a large part of the sun's rays back to the atmosphere. High albedo. Dark surface absorbs the rays from the sun. Low albedo. Hence albedo determines the brightness of a body. Mercury receives a very high amount of sunlight but its albedo is low as compared to the earth. Hence the planet Mercury is not that bright in nature. The albedo of earth is 0.367, whereas the albedo of Mercury is merely 0.138. The diameter of planet Mercury is approximately 4879 km. Hence, albedo determines the brightness of a body. Mercury receives a very high amount of sunlight, but its albedo is low as compared to the Earth. Hence, the planet Mercury is not that bright in nature. The albedo of Earth is
0.367, whereas the albedo of Mercury is mere 0.138. The diameter of planet Mercury is approximately 4879 किलोमीटर। तो चलिए, ये थी थ्योरी मरकरी से रिलेटेड। अब मरकरी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आए हैं उनको पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, द प्लैनेट मरकरी इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एज शोन इन द गिवन फिगर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मरकरी इज ग्रेटेस्ट एट द पॉइंट लेबल्ड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सबसे ज़्यादा बताना है कहाँ पर मरकरी में जो काइनेटिक एनर्जी है वो मैक्सिमम होगी। ठीक है, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मरकरी इज़ ग्रेटेस्ट एट द पॉइंट लेबल्ड। बताना है कहाँ पर हाईएस्ट होगी सबसे ज़्यादा। तो इसका आंसर हो जाएगा ए जो पॉइंट है वहाँ पर क्या है, जो कि क्लोजेस्ट टू द प्लेनेट है। क्लोजर ए प्लैनेट इज़ टू द सन। देख रहे हैं, जैसा कि ये क्या है, एस फॉर सन दिखाया गया है और इसमें पूछा गया है कि द प्लैनेट मरकरी इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट एज शोन इन गिवन फिगर। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मरकरी इज ग्रेटेस्ट एट द पॉइंट लेबल्ड। हमने बताना है कि मरकरी इस पर किससे रिप्रेजेंट किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं कि जो मरकरी है वो सन के सबसे नियरेस्ट होता है, सबसे क्लोजेस्ट जो प्लैनेट है वो मरकरी है। तो ए जो पॉइंट है वो सबसे नियरेस्ट है सन के, एस के। तो क्या हो गया, ये हो गया मरकरी जो है ये सबसे क्लोज़र है। तो इसलिए यही क्या हो जाएगा, जो ए पॉइंट है वो रिप्रेजेंट करता है मरकरी को। और यहीं पर जो सन का जो ग्रेविटेशनल पुल है वो सबसे ज़्यादा होगा और यहीं पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, मरकरी की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, द क्लोजर ए प्लैनेट इज़ टू द सन, the stronger the sun's gravitational pull on it, thus the planet moves faster. ठीक है, the closer a planet is to the sun, the stronger the sun's gravitational pull on it, thus the planet moves faster. इसीलिए जो हमारा मरकरी है वो काफ़ी फास्ट मूव करता है। ठीक है, और इसमें क्या है कि ये 88 डेज़ में अपना पूरा एक सन के अराउंड जो रिवॉल्यूशन है उसको भी कंप्लीट कर लेता है। 87.96 डेज, दैट इज़ एट अबाउट 88 डेज। ठीक है, नेक्स्ट है, और जो कि सबसे जल्दी है, सबसे फास्ट है इसीलिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट टेक्स द लीस्ट टाइम टू ऑर्बिट द सन। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? ऑब्वियस है मरकरी होगा, क्योंकि मरकरी क्या है, एक तो सबसे नियरेस्ट है, तो नियरेस्ट है तो इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी और ये सन के अराउंड रिवॉल्व करने में, एक चक्कर लगाने में, इसका एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट होने में सबसे कम टाइम लगता है। और कितना लगता है? 87.96 डेज। The planet Mercury takes the least time to complete one rotation around the Sun. The time taken by all 8 planets to complete one rotation around the Sun is as follows. Mercury कितना टाइम लगाता है सन के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करने में? 87.96 डेज, जो कि सबसे फास्ट है, सबसे कम टाइम है। वीनस 224.68 डेज। अर्थ कितना टाइम लगाती है? अर्थ सन का रोटेशन एक चक्कर कितने टाइम में कंप्लीट करती है? अर्थ रोटेट जो करती है सन के अराउंड एक रोटेशन कंप्लीट करती है 365.26 डेज में। मार्स 686.98 डेज में। जुपिटर 11.862 ईयर्स। ठीक है, Saturn 29.456 years, Uranus 84.07 years, Neptune 164.81 years. ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, द टू प्लैनेट्स हैविंग नो सैटेलाइट आर। इसका आंसर हो जाएगा मरकरी एंड वीनस। ठीक है, देयर आर ओनली 2 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हैविंग नो नेचुरल सैटेलाइट्स विच आर मरकरी एंड वीनस। क्वेश्चन क्या पूछा था? द 2 प्लैनेट्स हैविंग नो सैटेलाइट्स, ऐसे 2 ग्रह जिनके कोई सैटेलाइट नहीं है, तो ऐसा आंसर हो जाएगा मरकरी एंड वीनस। ठीक है, देयर आर ओनली 2 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम हैविंग नो नेचुरल सैटेलाइट विच आर मरकरी एंड वीनस। द प्लैनेट हैविंग सैटेलाइट्स आर एज फॉलोज। ठीक है, अर्थ का एक सैटेलाइट है, मार्स के 2 सैटेलाइट हैं, जुपिटर के 79 सैटेलाइट हैं, सैटर्न के 82 सैटेलाइट्स हैं, यूरेनस के 27 सैटेलाइट्स हैं, नेपच्यून के 14 सैटेलाइट्स हैं। और ये क्या है, चेंज भी होते रहते हैं। जैसा कि अभी सैटर्न का है और जो जुपिटर है इसमें अभी रिसेंटली चेंज हुआ था इनके जो सैटेलाइट्स हैं उनके नंबर में। ठीक है,
तो इसीलिए ये तो अभी जो भी जहाँ तक का डेटा हमारे पास अवेलेबल है उसको हम पढ़ रहे हैं। अर्थ का एक सैटेलाइट है, मार्स के 2 हैं, जुपिटर के 79 हैं, सैटर्न के 82 हैं, जबकि अभी इंक्रीज़ हो गए हैं सैटर्न के और जुपिटर के। तो इसको करंट कॉन्टेक्स्ट में देख लेंगे। यहाँ पर जो डेटा दिया गया है उसको हम देख रहे हैं। यूरेनस के 27 हैं, ठीक है, और नेपच्यून के 14 सैटेलाइट्स हैं। इन एडिशन टू दीज प्लूटो, जिसे कि हम ड्वार्फ प्लैनेट कहते हैं, उसके पास 5 नोन सैटेलाइट्स हैं, ठीक है। प्लूटो दैट इज़ ड्वार्फ प्लैनेट हैज़ 5, ठीक है, 5 नोन सैटेलाइट्स। नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स डज नॉट हैव सैटेलाइट्स, तो वही हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था कि जो वीनस और मरकरी हैं, इन दोनों प्लैनेट्स के पास सैटेलाइट्स नहीं है। तो वीनस यहाँ पे दिया है, वीनस और मरकरी हो जाएगा। यहाँ पे वीनस है तो वीनस आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, which of the following planets does not have a satellite, तो इसका आंसर हो जाएगा मरकरी डज नॉट हैव ए सैटेलाइट। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ द प्लैनेट इज विदाउट सैटेलाइट, तो इसका आंसर हो जाएगा सेम वही क्वेश्चन रिपीट हुआ है। मरकरी एंड वीनस का कोई भी अपना सैटेलाइट नहीं होता है, ठीक है। वीनस एंड मरकरी आर द ओनली प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम विच डू नॉट हैव एनी नेचुरल सैटेलाइट्स, ठीक है। Venus and Mercury are the only planets in the solar system which do not have any natural satellite or moon, while Earth has 1 moon, Mars has 2 moons, Jupiter has 79 moons, Saturn has 82 moons, Uranus has 27 moons and Neptune has 14 moons। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है द एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विद रिफ्लेक्टेड लाइट, ठीक है। सेकेंड स्टेटमेंट है द एल्बिडो ऑफ मरकरी इज़ मच ग्रेटर दैन द एल्बिडो ऑफ द अर्थ। बताना है विच ऑफ द, ये क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में ये स्टेटमेंट दिया है। और इसके बाद ये कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बस यही इसमें क्या है कि बस क्वेश्चन नंबर 7 इसके बाद ये इनकम्प्लीट है। रिफ्लेक्टेड लाइट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये इनकम्प्लीट है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 7 एक बार हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे पूछा गया है कि पहला स्टेटमेंट तो हमने पढ़ लिया कि पहला स्टेटमेंट क्या पूछा गया है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विद रिफ्लेक्टेड लाइट। इसके बाद सेकंड स्टेटमेंट है, सेकेंड स्टेटमेंट इसमें नहीं दिया गया है, मैं पढ़ के बोल रही हूँ। सेकेंड स्टेटमेंट इस क्वेश्चन में है कि द एल्बिडो ऑफ मरकरी इज़ मच ग्रेटर दैन द एल्बिडो ऑफ द अर्थ, यही है, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेटमेंट है, सॉरी उनका नंबरिंग गलत हो गया है ये, तो ये हो जाएगा द एल्बिडो ऑफ द मरकरी इज़ मच ग्रेटर दैन द एल्बिडो ऑफ द अर्थ, ठीक है। यही सेकंड स्टेटमेंट है, यहाँ पे 8 गलत लिख गया है। विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज़ और आर करेक्ट, इसमें से बताना है इन दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसमें से तो हमें केवल पहला ही जो स्टेटमेंट है सिर्फ वही सही है। क्यों? क्योंकि द एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विद द रिफ्लेक्टेड लाइट। एल्बिडो हमने पढ़ा था ना कि जो सन की लाइट होती है, जो क्या है उसकी रेज होती है, उसको हम कहते हैं, जो हमें विजुअल पार्ट दिखाई देता है, ब्राइटनेस दिखाई देती है, उसको एल्बिडो कहते हैं, ठीक है। तो एल्बिडो ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिटरमाइंस इट्स विजुअल ब्राइटनेस व्हेन व्यूड विद रिफ्लेक्टेड लाइट, तो उसमें ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। और जो ये दूसरा स्टेटमेंट है द एल्बिडो ऑफ मरकरी इज़ मच ग्रेटर दैन द एल्बिडो ऑफ अर्थ, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो मरकरी प्लैनेट है उसकी जो एल्बिडो है वो क्या होती है, वो अर्थ की एल्बिडो से काफ़ी कम होती है, ठीक है। तो इसीलिए दूसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, ओनली वन, ए इसका आंसर हो जाएगा। द टर्म एल्बिडो इज़ कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन द ब्राइटनेस ऑफ द प्लैनेट, ठीक है। जो एल्बिडो है, द टर्म एल्बिडो इज़ कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन द ब्राइटनेस ऑफ द प्लैनेट मरकरी रिसीव्स ग्रेटर सनलाइट इन कंपैरिजन टू अर्थ बट इट्स एल्बिडो इज़ लेस दैन दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। The albedo of Mercury is 0.138 while of Earth
इट इज़ 0.368। अगर हम एल्बिडो की बात करें तो किसका एल्बिडो ज़्यादा है? एल्बिडो अर्थ का ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे दिया गया है कि प्लैनेट मरकरी रिसीव्स ग्रेटर सनलाइट इन कंपैरिजन टू अर्थ बट इट्स एल्बिडो, अगर प्लैनेट जो मरकरी है उसकी एल्बिडो कैसी है? लेस देन दैट ऑफ अर्थ, ठीक है। जो प्लैनेट मरकरी है, मरकरी की जो एल्बिडो है वो क्या है? अर्थ की एल्बिडो से कम है। द एल्बिडो ऑफ मरकरी इज 0.138 while the earth is 0.367। thus only statement 1 is true and option A is the correct answer, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा जो मरकरी है वो कंप्लीट होता है। अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम वीनस प्लैनेट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करेंगे। अभी का लेक्चर यहीं पे रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।